So hi everyone, welcome to you all in my another video, and today video is about pharmacy exit examination in India. As you know, there is a PCI new notification that once you complete your degree or diploma, then you have to go for this exit examination. After that, you can be a registered pharmacist in India. So I will discuss in this video that A to Z information about this and a lot of news, and about this video. And I also posted one of the video, and you can ask me a lot of questions. So I will also explain those questions. I will try to explain in this video as well. And I will see that what is the impact for this exam on you are looking a job in abroad. My name is Dr. Akram Ahmed. I'm a pharmacist, lecturer, medical scientist in Australia. So I will always make videos for you if you are looking a job in abroad. So please like and subscribe my videos so I can make videos for you. And please leave a comment below if you have any questions. So now we can start the video. So दोस्तों, as you know, there is a new notification from PCI that if you once you complete your diploma, you must go for a examination, and then after that you can be a registered pharmacist in India, and then you think abroad if you are looking a job in abroad. So earlier that once you complete a diploma in pharmacy, and then you have to go for 3-year internship in hospital, that is a 500 hours, then you can directly register as a pharmacist in your state pharmacy council. But now this examination in going to once you complete your diploma, then you have to go for 500-hour internship. Then this examination we have it to be two times in a year. So you have to pass this exam, then only you can register as a pharmacist in India. So earlier also another notification that this examination also for B Pharm. So right now this I think that this is the examination for both of you, diploma and B Pharm. You must pass this exam before you register as pharmacist in India. But right now they only give the notification for diploma in pharmacy. This is mandatory for them if you just complete your diploma. But B Pharm, it might be after some time they will also give you another notification. So you have to also follow the same path as like diploma in pharmacy. तो दोस्तों, as you know, in इंडिया में जो फार्मेसी का जो स्कोप है डे बाई डे जो है कम होता जा रहा है. इसका एक प्रॉब्लम ये है कि जो है वहाँ पर जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और जो डिमांड कम है. वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा न्यू कॉलेज हो रहे हैं. जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, सारे फार्मेसी कॉलेज खोल रहे हैं. और जो है वो लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर्स में और आपको बताते हैं कि आपका ये स्कोप है, आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो. बट जब आप पास होकर निकलते हो तो आपको लगता है यार यहाँ तो कोई स्कोप है नहीं, हमने गलत कोर्स में जो है एडमिशन ले लिया है ना. तो मैं आपको ये भी पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि आप विदेश में कैसे जा सकते हैं. तो मेरा तो यही काम है, मैं यही बताता हूँ आप लोगों को कौन कौन से देश में आप जाके जॉब कर सकते हैं ना. तो उसके लिए PCI ने क्या किया है कि उसके स्टैंडर्ड को, फार्मेसी के स्टैंडर्ड को इंडिया को अगर बढ़ाना है तो एक एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा. क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका अपना स्टैंडर्ड कुछ नहीं है और वो जस्ट डिग्रियाँ बांट रहे हैं. जो है ना, बहुत सारे तो ऐसे कॉलेज आपको मिल जाएंगे, एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएंगे कि जस्ट आपको एडमिशन लेनी है और अगर आपको बैक डेट में भी डिग्री मिल जाएगी डिप्लोमा की, तो फिर जो है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग अनअटेंडेड लोग आ रहे थे फार्मेसी के बाद. जब ऐसे लोग मार्केट में जाएंगे, उनको कोई नॉलेज नहीं होती है, तो फिर फार्मेसी का जो है डे बाई डे डिग्रेडेशन ही होगा, है ना. तो अभी क्या होगा कि यूनिफॉर्म जो है अब जो है एक एजुकेशन हो जाएगी इंडिया के अंदर. पूरे इंडिया में आपने कहीं से भी डिप्लोमा किया होगा तो आपको ये एग्जामिनेशन देना होगा. तो जो PCI का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना होगा. अभी क्या है, जो PCI का एक रेगुलेशन है बेसिकली, उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे कॉलेजेस में जो एजुकेशन होती है, जो पढ़ाई होती है, वो वहीं का सिलेबस फॉलो करते हैं. पर बहुत सारे अपने प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जो यूनिवर्सिटी होती हैं, वो क्या करती हैं, जो है अपने जो है बच्चों को हाई मार्क दे देती हैं, या फिर जो है वो अपने खुद से जो क्वेश्चन पेपर्स बनाती हैं ना. तो बहुत सारी जो लूप होल्स आ रही थी, तो अनअटेंडिंग लोग कर रहे थे. तो इन सब के लिए जो है PCI ने ये अच्छा स्टेप है मैं कहूँगा. तो आप लोगों को इसमें क्या होगा, फार्मेसी का स्टैंडर्ड जो है इंडिया में बढ़ेगा और आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी. तो ये जो एग्ज़ाम है, एक साल में 2 बार एग्ज़ाम हुआ करेगा ये. और ये एग्ज़ाम बेसिकली ये 3 एग्ज़ाम होंगे और 3-3 घंटे के एग्ज़ाम होंगे. तो मगर अभी ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया PCI की तरफ से कि 3 एग्ज़ाम एक दिन में होंगे या जो है ये अलग अलग 3 एग्ज़ाम्स होंगे. जितना भी आपने जो पढ़ाई किया है उसमें से आपको ये सारे क्वेश्चन आएंगे. और ये जो बेसिकली जो पासिंग मार्क्स है वो 50% है राइट नाउ, है ना. तो अगर आप 50 से अगर आपके कम मार्क्स करते हैं तो आप जो है पास नहीं कर पाएंगे. और आप अगर रजिस्टर
फिर नहीं कर सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट इन इंडिया में। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप लोग जो है कहीं भी जॉब नहीं कर सकते हैं, कहीं अपनी फार्मेसी भी आप लोग ओपन नहीं कर सकते हैं। फिर आप लोगों को जो है जो नॉर्मल जॉब्स हैं, जैसे कि आप MR बन गए या कोई ऐसी छोटी मोटी दूसरी जॉब्स हैं, फिर आपको उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम लोग जो है बेसिकली फार्मेसी की जो प्रैक्टिस है आप लोग नहीं कर सकते हैं अगर आपने पास नहीं किया। तो इस एग्ज़ाम में एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो है ये एग्ज़ाम आप कितनी भी बार दे सकते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि आपको 1 या 2 बार देना है या 3 बार देना है, उसके बाद आप लोग नहीं दे सकते हैं। तो कितनी बार हम दे सकते हैं, और एक साल में जो है 2 बार एग्ज़ाम होगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। और एक इन्होंने ये कहा है अभी तक कि जितने भी लोगों ने रजिस्टर अभी तक कर लिया है तो उन लोगों को नहीं देना है, पर जिसने रजिस्टर नहीं किया है तो उनको एग्ज़ाम देना है। अब एक क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि ये 2022 से लागू होगा, अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, पर अभी डेट आएगी रिसेंटली सून कि अभी ये कब होगा 2018 में, क्योंकि अभी तो हम जस्ट फरवरी में मार्च में चल रहे हैं। तो अभी जो है 2-3 महीने के बाद एक नोटिफिकेशन आ सकती है कि कब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 2 बार एग्ज़ाम होना है ये ईयर में, या हो सकता है 2022 में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, 2023 से जो 2 बार एग्ज़ाम हुआ करेगा, है ना। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस खुल गए हैं, तो हो भी सकता है कि उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को जो है बढ़ा दिया जाए। तो अब एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा से फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये डिसएडवांटेज है, बार बार बच्चा अगर फेल हो रहा है तो जो है उसको बार बार जो है फ़ीस देनी पड़ेगी आपको, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार में आप जो है आपको पास करें। मगर आपने अगर फार्मेसी की पढ़ाई अच्छे से करी थी, आपने जो खुद से अच्छी मेहनत से पढ़ाई की, तो फिर आप लोग जो है इसको पास कर सकते हैं। मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं लगता है, 50% को इतने हाई मार्क्स नहीं होते हैं। अब एक बात यह है कि अगर आप फेल हो गए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर मैं विदेश में जाकर जॉब कर सकता हूँ क्या नहीं, तो इसका आंसर है कि नहीं, क्योंकि उसकी कंडीशन ये होती है कि आप अपनी कंट्री में आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे पहले, तभी आप दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जाके आप लोग जो है एग्ज़ाम लिखेंगे और फिर वहाँ पर ऐसे फार्मासिस्ट आप लोग जॉब कर सकते हैं। तो अभी जो ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ डिप्लोमा के लिए है, B.Pharm के लिए नहीं है, पर फ्यूचर में B.Pharm के लिए भी ये आएगा। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कोई भी बनेगा ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया में तो जो है वहाँ पर जो है सबको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इवन डिप्लोमा B.Pharm ये लगता है बाद में जो है कुछ टाइम के बाद जो है PharmD को भी ऐसा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं, वहाँ पर जो है लोग इजीली पास कर दे रहे हैं एग्ज़ाम जो है ना। तो एक तरह से मैं कहूँगा ये अच्छा रेगुलेशन है, और विदेश में भी ऐसा ही होता है, वहाँ पर फार्मेसी करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है और फिर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी जब B.Pharm करता है यहाँ पर या M.Pharm करता है, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने से पहले 1 साल की वो ट्रेनिंग करता है, इंटर्नशिप करता है, उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम लिखता है। 2 एग्ज़ाम पास करने के बाद ही वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनता है। तो सेम स्टेप जो है PCI भी इंडिया में फॉलो कर रही है, तो इससे फार्मेसी का स्टैंडर्डाइज होगा और जो है अच्छी जॉब्स मिलेंगी, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।